मैं भी कर लेती हूँ। कौन सा यूज एक बार वो फिर वो साउंड को सबको म्यूट कर देना। नमस्कार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Making these lines of Harivansh Rai Bachchan ji the motto of today's session and our lives, let's begin this journey by paying our sincere obeisances in Sri Charan of Rishi Dadhi ji. This introduction was originally was to be held by Mr. Vaibhav Dadich today, who couldn't join. We wish his father a speedy recovery. So I'm taking over here. My name is Vartika Dadhich and I'm a BTech sophomore majoring in computer science. I'll be taking you through the journey of DITF and updates related to it. Firstly, I would like to extend a very warm welcome to all of you on behalf of DITF. Thanks a lot for taking out time and joining us. I hope you have a knowledgeable, fun-filled event today. तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के साथ जो DITF का स्लोगन और सोल है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्. This shlok was recited by Dr. Rajneesh Ji Dadhich. We are very thankful to him for giving this his voice, and what a beautiful meaning it has, that one who practices the science of work without attachment can get rid of both good and bad reactions in this life itself. Therefore, strive for yoga, which is the art of working skillfully. And now the man who needs no introduction from me, one who has connected all the dots together to make us all together here, who gives even the young generation a run through his immense enthusiasm to learn and energy, and the one and only gem of a kind. And also I promise his sense of humor will leave you in splits. Thank you very much, Mr. Devesh Ji Dadhich, for giving us this opportunity and this platform to connect and learn. Moving on, the mission and vision of Dadhich International Trade Foundation. Our mission is to create a community of people who come together for a noble cause of economic empowerment, social development, knowledge, and service. Our vision is to inspire lifelong learning, advanced knowledge, and strengthen our communities. DITF has held more than 25 plus events from the day it has started in 2020. These are some of the glimpses of the events in 2021, like Right to Information Act, obesity, job interview, और ये उन सब इवेंट्स की कुछ झलक. आज का हमारा वेबिनार क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है, जिसमें हमें मिस्टर सागर दाधीच कनाडा से और मिस्टर भाग्येश त्रिपाठी अपनी knowledge हमारे साथ शेयर करेंगे. This and many more things are in the pipeline, like this mega event of National Cricket League 2021.
You can registrations are open on this website, and you can go forward and register for it. The ITF bulletin, as you all must have received, launched on 1st January 2021 by Acharya Pundarik Ji Goswami, and since then this has been published every month, and all thanks to our editor-in-chief, Dr. Tanra Dadij, who made this possible. And if you all want to contribute in any form by writing blogs, articles, poems, or your views in the ITF bulletin, please do contribute. Please send it on our email ID dadij@ditfindia.org. DITF has also started this initiative, DITF Learning Center, wherein mentorship programs, career counseling sessions, and workshops are organized. The brilliant minds behind it are Mr. Devesh Ji Dadij, Mr. Sushil Ji Dadij, Mr. Kuldeep Ji Dadij, Ms. Arushi Sharma, Mr. Naman Dadij, Mr. Harshad Dadij, and Mr. Jay Asopa. Do connect with them if you have any queries and if you want to know more about this initiative. Another beautiful initiative of DITF is a novel. Another novel initiative is DITF Support Center. The purpose of it is, with the second surge in COVID, there is all-round uncertainty and chaos, and therefore DITF has decided to lend a helping hand in order to build confidence among our people through a team of experts. And the pioneers of this novel initiative are Dr. Subhash Ji Dadij, Dr. Gaurav, Shri Krishan Ji Daima, Ms. Meenakshi Ji, C. Rashmi Ji Daima. And as we all know, कहानी वह द्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक ही क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है. तो DITF, in its mission to build relationships and to promote fraternity, has initiated a project, Storytelling, where participants share stories, and it's promoted on our YouTube channel. If anyone wants to share their story, please share your video while you are storytelling on our email ID, that is dadij@ditfindia.org. The webinar which is to be held on next week, which is 30th May on 5 p.m. is this beautiful initiative, guidance on higher education in abroad. Like we all say, विदेश में उच्च शिक्षा की जब हो बात, आओ पहले कर लें अपनों से राय मशवरा और मुलाकात. So DITF, in order to help and guide both students and parents on various issues involved in decisions of going abroad to pursue higher education, has planned this webinar on this crucial topic. Our panelist, Dr. Avinash Ji Dadij, will enlighten us with his vast knowledge during this webinar. He is the Dean of Institute of Legal Studies and Research and Director Strategic Initiatives at GLA University, Mathura. He has completed his LLB from DU, LLM from France, PhD from UK, and also is an IVLP fellow in USA. Both his degrees from abroad are on full scholarship awarded by government and university. So he has a vast experience of working with EY, Deloitte, MCA, Government of India, and Supreme Court. You can see how much rich his experience is. This webinar will be presented by Mr. Mohit Ji Dadij, who is the Head of Students Engagement and Experience at UPES Dehradun. And it will be moderated by Mr. Nikhil Ji Dadij, who has completed his BTech from IIT Delhi, and he is a data scientist. And finally, vote of thanks will be delivered by Mr. Sanket Ji Daima, who is pursuing his MSc from Data College of Ireland. Make sure to join this webinar on 30th May 5 p.m. to get a piece of their minds. And you can reach out to us on our handles on Instagram. Follow us on Instagram, write to us on our Gmail account, follow us on Facebook, and like, share, and subscribe to our YouTube channel to find all previous webinars and every event. And thank you so much. इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम शुरू करूं, मैं अत्यंत गर्व और हर्ष के साथ बधाई देना चाहूंगी हमारे सभी प्रेरणा स्रोत श्री जयप्रकाश जी शर्मा को, जिन्हें इनके अदम्य साहस और प्रेरणादायी कल्याण कार्यों के लिए नेशनल यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया.
आपने ये साबित कर दिखाया कि जब मन में दृढ़ विश्वास और हौसले बुलंद हो तो राह में रुकावट बनी चट्टानें भी सीढ़ी बन जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हर वेबिनार में जुड़ने के लिए। लेट्स लिसन टू हिज ब्यूटीफुल पोएम ऑन आशा। नमस्कार, मैं जयप्रकाश शर्मा जोधपुर राजस्थान से। देवेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक बहुत अच्छी संस्था बनाई DITF। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आशा जीवन के अभिन्न अंग है। हमें आशा तो हर चीज़ में रहती है और आशा हमें रखनी भी चाहिए। आशा जीवन है, आशा उमंग है, आशा तरंग है, आशा रंग है, आशा उत्साह है, आशा शक्ति है, आशा तेज है, आशा भक्ति है, आशा प्रण है, आशा प्राण है, आशा संस्कार है, आशा संस्कृति है। धन्यवाद। आशा पर ये कविता हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। इसी ऊर्जा के साथ हम शुरू करते हैं आज का वेबिनार ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू देवेश जी फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, एंड विद दैट let us start. As we all know, cloud is the latest trend or buzzword in this world. So if the 90s were about do-it-yourself PCs and networks, today is all about turning to the internet for a solution. And no doubt it is turning out to be more efficient way of doing things. आज के ज़माने में गूगल के बिना हम इमेजिन भी कर सकते हैं अपनी लाइफ। Believe it or not, you are probably using the cloud regularly without even realizing it. You ever wonder how you are able to do some of the things which you do, like sending emails, chatting with someone, or making calls online? Most of these services are delivered by the cloud. Stay tuned to know more about cloud, what is its day-to-day use in our lives, and how you can build a career in it. Joining us today from Toronto, Canada, is an industry expert, Mr. Sagarji Dadhich, who has a vast experience of 13 plus years as an IT professional working in banking industry. He has played and expertised in versatile roles in his career, ranging from developer to architect. He enjoys solving critical business. He's certified in AWS, Azure, and Google Cloud Solution Architect. Please extend a very warm welcome to Mr. Sagarji Dadhich. Thank you very much for joining us today, sir. As our second panelist for today's webinar, we have Mr. Bhagyesh J. Tripathi from Maharashtra. He is the founder director of TriMagine Group, which is an IT solutions company where he and his team provide digital solutions to businesses across the country. His application software was inaugurated by ex-Chief Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. He has also received several awards for his exceptional talent, namely Director Innovations Award, Young Leadership Award, Youth Inspiration Award, first rank in National Software Competition in 2017 and 2018, among others. Welcome, Mr. Bhagyesh Tripathi. Thank you for joining us today. I hope all of you are excited to broaden your horizons by today's session. I would request everyone to keep your mics on mute, and with that, let us begin. I would welcome Mr. Bhagyesh Tripathi to enlighten everyone by telling us about cloud computing and how it's revolutionized industry and also our lives. Over to you, Mr. Bhagyesh. Thank you very much, Vastika. And I would like to thank you to Mr. Devesh Dadhich for giving to an opportunity to me. It's very proud moment. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने आप किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट ही है और DITF के माध्यम से एक सारे प्रोफेशनल्स को जोड़ने की एक जो इनिशिएटिव देवेश सर ने लिया है, इट्स रियली अप्रिशिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपने बहुत बार सुना भी होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पे, टीवी पे, बहुत जगह पे सुना ही होगा।
सो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा, ये क्या है, कैसा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या सही में आसमान में एक कंप्यूटर लगा हुआ है? तो भई आसमान में कोई एक कंप्यूटर वगैरह नहीं है, आसमान पूरा साफ है, मौसम पूरा क्लीन है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये नाम क्यों है? मतलब इस जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों है? सो हम अगर क्लाउड की बात करें तो वो छोटे-छोटे वाटर मॉलिक्यूल से बनता है, जो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, कभी नहीं है, आज इधर है, कल उधर है। सो जो मेन टेक्नोलॉजी है, वो ही इसी से रिलेट करता है। ये एक बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ा होता है और बहुत सारे यूज़र्स से जुड़ा होता है, कभी यूज़र्स है, कहीं नहीं है, कभी आपका डेटा किसी सर्वर पे रहेगा, कभी आपका डेटा कहीं शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन वो आपकी तरफ बराबर एक्सेसिबल रहेगा। सो अगर मैं बात करूँ कि एक एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ अगर मैं देना चाहूँ, तो आपके घर में सपोज़ एक कंप्यूटर है, जिसके ऊपर आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी फ़ाइल स्टोर करते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं। अब हुआ ऐसा कि अब आपको हाई एंड गेम खेलना है या फिर आपको आपकी कंपनी है, आपको बहुत सारा आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनका डेटा स्टोर करना है। तो अब ऐसे टाइम पे अगर आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करें, मतलब देखा जाए तो 2 तरीके हैं, तो आप कंप्यूटर अपग्रेड कीजिए या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक यूनिट अच्छे से आप लगाइए। लेकिन ये थोड़ा-सा शायद खर्चीला हो सकता है। ज़्यादा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। सबसे पहले तो आप इमीडिएटली ये कर नहीं पाओगे। आपको कंप्यूटर का रैम चेंज करना है, आपको कंप्यूटर का स्टोरेज जो हार्ड ड्राइव है वो चेंज करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिज़िकली चेंज करनी होगी व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर एक दूसरा तरीका देखा जाए कि आप किसी आपके फ्रेंड को बोले कि भई तेरे पास एक अच्छा पावर आई थिंक आपके पास एक अच्छा पावरफुल कंप्यूटर है, सो आप क्या करो कि आप आपका कंप्यूटर का एक्सेस मुझे दे दो, मैं अपना काम कर लूँगा और भले आपको आपके जितना टाइम मैंने यूज़ किया है उस हिसाब के आपको मैं पेमेंट कर दूँगा, राइट? सो अगर इस तरह से हम कंप्यूटिंग यूज़ कर पाएँ तो रेंट पे करूँगा, आई थिंक वो शायद बहुत छोटा-सा एक अमाउंट रहेगा जो कि आप पे करोगे, राइट? तो आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो हाई स्पीड कंप्यूटर आई मीन सॉरी हाई एंड कंप्यूटर की नहीं, हाई एंड इंटरनेट की ज़रूरत है। तो आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप वहाँ पे बैठे हो, आप मेरा कंप्यूटर या फिर मेरा सिस्टम का जो पावर है, मेरे सिस्टम का जो रैम है, मेरा सिस्टम का जो स्टोरेज है, आप वो यूज़ कर पाओगे। तो इट्स क्वाइट गुड राइट? सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक यही एक ज़रिया है कि आप कहीं से भी बैठे हुए आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। सपोज़ आप आपके घर पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप पे फिर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप टैबलेट पे अपना काम शुरू कर दिया, टैबलेट पे अपनी फाइल्स वगैरह देख रहे हो या फिर कुछ आपके पास टैबलेट नहीं, आपके छोटा-सा फ़ोन है, आप फ़ोन पे आप डेटा वगैरह आपका देख रहे हो, स्टोर कर रहे हो। सो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ आगे जाके तो फिर सबसे बड़ा फीचर कि भई अगर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको आपका सिस्टम स्केल करना है, स्केल अप करना है। सपोज़ आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्ड ड्राइव 500 जीबी तक का है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अब बढ़ चुकी है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको 1 टीबी तक का चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो कंप्यूटर शॉप पे जाओगे, वो हार्ड ड्राइव परचेज़ करोगे। इट्स ये बहुत लेंदी और थोड़ा खर्चीला है। उस हिसाब से अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप अपना सिस्टम स्केल अप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप 100 जीबी यूज़ कर सकते हो, कल आपको 1000 आपका डेटा बढ़ गया है, आपको बहुत कुछ पावरफुल चाहिए, आप 1000 जीबी तक का आप स्टोरेज वाला यूज़ कर लो या फिर अब आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 10 जीबी का कर लो। तो आप इज़िली अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर्स का वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो या फिर इट्स नॉट अ लिमिट फॉर दैट। तो अगर देखते हैं कि एक अच्छा सा एक और एग्ज़ाम्पल दूँ तो सपोज़ मेरे पास 10,000 टीबी का मैंने एक बहुत अच्छे से टीबी इन द सेंस टेराबाइट राइट 10,000 टेराबाइट का मैंने बहुत अच्छा सा एक सेटअप मेरे घर पे लगा लिया और मेरे कॉलोनी में या फिर मेरे सिटी में मैंने बोल दिया कि यार आप सभी लोग 500 जीबी तक का 500 500 जीबी तक का मेरे से सर्विस जो है वो ले लीजिए। अब मैंने सब पूरा मस्त सिक्योरिटी के साथ में हाई एंड एन्क्रिप्शन के साथ में जो भी डेटा है वो आपका सिक्योर कर लिया। अब आपको 500 जीबी आप इज़िली यूज़ कर रहे हो। अब उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके लैपटॉप को कुछ हो जाए, सो क्या इसकी गारंटी है कि आपको डेटा आपका रिट्राइव होके मिलेगा वापस? ऑब्वियसली नॉट, आई थिंक श्योर
अगर मिल भी जाए या फिर कुछ डैमेज हो जाता है तो नहीं भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, हो सकता है पूरा डेटा ना मिले। बट इसमें ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपका डेटा है उसके कम से कम बहुत एक गूगल का सर्वे है 5 कॉपीज वो मैक्स टू मैक्स बना के रखता है। तो आपके डेटा के बहुत सारे कॉपीज रहेंगे उसमें। अब आपका सपोज डेटा लॉस हो रहा है तो आप सपोज मेरा सर्वर जल गया, अगर डेटा लॉस होगा तो आपका डेटा उसमें दूसरे ड्राइव पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो ऑलरेडी उसमें कॉपीड रहेगा। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस। आपको एक तो हेडेक नहीं रहेगा, आपको मेंटेनेंस का कुछ करना नहीं है कि यार उसको कैसे मैं मेंटेन करूंगा, मैं किस तरह से उसको, ये सारी चीज वो वही है जो क्लाउड आपके कंप्यूट करें, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। अब इसके मॉड्यूल क्या है भाई, आई होप कि शायद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है आपको क्लियर हुआ है। आई होप मुझे जल्दी से कोई फीडबैक दे दीजिए या फिर थम्स अप कर दीजिए या फिर कोई इजीली मुझे दे दीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में आप नोट डाउन कर सकते हो। आई एम श्योर। ओके हेमंत दादीज, ओके ओके। आई होप कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है सबको समझ में आया होगा। और अब इसके जो मॉड्यूल्स है कि किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है वो हम जानेंगे। तो देखा जाए तो 3 मॉड्यूल्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। एक तो हो गया IaaS, दैट्स कॉल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा होगा PaaS, PaaS, दैट अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और लास्ट वाला हो गया SaaS, SaaS इन द सेंस नॉट अ SaaS, इट्स अ SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अब हम जानते हैं IaaS के बारे में। तो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, अगर आपको लाइव एग्जांपल दूं, ओके, तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि आप एक एक पर्सन है, उसको अपना जो घर है वो किराए पर देना है। तो पर्सन जो है वो हो गया क्लाउड सिस्टम ओनर, वो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा जो है जिसको वो फ्लैट है या फिर जो रेंट के ऊपर लेना है, वो हो गया क्लाउड यूजर, जिसको क्लाउड यूज करना है। अब इसमें क्या होगा कि जो फ्लैट वाला है, जो बंदा है, वो अपना फ्लैट उसके रेंट पे दे देगा, बट वो एक नॉर्मल फ्लैट रहेगा। उसके अंदर क्या फर्नीचर करना है, किचन में क्या करना है, या फिर कोई सिस्टम कैसा करना है, या फिर एसी लगाना है कि नहीं, कूलर लगाना है कि नहीं, ये सब जो है वो यूजर देखेगा। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको एक रॉ सिस्टम मिलता है, रॉ कंप्यूटर मिलता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उसमें क्या सर्विसेज लेना है, उसमें क्या चलाना है, वो आप डिसाइड करोगे। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लिनक्स लेना है, मुझे एप्पल मैक ओएस लेना है, या फिर मुझे लिनक्स का ओएस लेना है, ये सारी जो चीजें रहेंगी वो आप यूजर खुद डिसाइड करेगा। सो आई होप कि IaaS का जो है, अब इसमें कैसा होगा कि जितना टाइम वो वहां पे रहेगा उतना रेंट पे करेगा। ऐसे ही जितना टाइम आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिस्टम यूज कर रहे हो, उतना टाइम ही आप उसको उसका रेंट पे करोगे, जो कि शायद बहुत छोटा सा एक नॉमिनल सा चार्ज उसमें होगा। अब अगर देखा जाए इसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह या फिर जो भी सिस्टम है वो आपको हाई एंड सिक्योरिटी के साथ में जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो आपको देते हैं। आपका जो डेटा है वो पूरा पूरा सेफ है, आपका डेटा जो है हाईली इनक्रिप्टेड पासवर्ड या फिर हाईली इनक्रिप्शन में सेफ है। सो ऐसा नहीं कि यार हम हमारा डेटा उनके पास दे रहे हैं तो वो सेफ कर रखेंगे कि नहीं, इट्स वेरी सेफ। और इनफैक्ट जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो भी आपका डेटा नहीं देख पाएगा, या फिर आप जो भी अपने सिस्टम पे कर रहे हो वो भी आपका डेटा, आप क्या कर रहे हो, कौन सा गेम खेल रहे हो आप, कौन से फोटोज है आपके, जो पर्सनल फोटोज है, लाइफ अचीवमेंट्स जो भी है, वो सारी चीजें जो सारी चीजें जो है वो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर नहीं देख पाता है। सो इट्स अ वेरी सिक्योर थिंग। अब अगर बात करें सेकेंड थिंग की, तो वो हो गया पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म में हम ऐसा देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चीज़ है वो जो वेब डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, अभी तक जो 70% जो है वो ये लोग यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि अब आपको कोई डेटाबेस चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर होस्टिंग चाहिए, जैसे कि अगर वेबसाइट हमें लॉन्च करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक होस्टिंग का प्लेटफॉर्म लगता है, तो वो वेबसाइट हमें दिख पाती है। आप जो www.datfindia.org है, वो एक होस्टिंग पे चल रही है, वो एक कहीं एक सर्वर पे स्टोर है जो कि सारे प्लेटफॉर्म पे वो दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करूँ तो हम जो ह्यूमंस हैं उनको जीने के लिए एक एनवायरनमेंट लगता है, हवा है, पानी है, सूरज है, एक एनवायरनमेंट है।
वैसे ही अगर सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। अब जावा अगर हमें किसी कंप्यूटर के ऊपर चलाना है तो हम डायरेक्ट उसमें कोड नहीं कर सकते। उसके लिए एक जेवीएम जावा एनवायरनमेंट हमें डाउनलोड करना पड़ता है। बट अगर मेरा लैपटॉप इतना अपग्रेडेड नहीं है कि मैं वो एनवायरनमेंट डाउनलोड कर पाऊँ, तो मैं सिंपल एक अपने लैपटॉप से, मोबाइल से या फिर इससे एक प्लेटफ़ॉर्म वो एक परचेज़ कर लूँगा वहाँ से, जिसमें वो एक एनवायरनमेंट बना के देंगे मेरे को जिसमें जावा का कोड रन होता है, देन वी विल शो। और तीसरा और सबसे अच्छा अगर आप मानो तो, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, ये आप सभी एंड एंड यूज़र्स यूज़ करते हो। एंड यूज़र जो है मतलब हम सब लोग, इसमें है सीआरएम, ईमेल मार्केटिंग। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात बोलूँ तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, आप जो ईमेल यूज़ करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, इनफैक्ट आप अभी जिस पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म, इट्स अ ज़ूम क्लाउड मीटिंग, राइट? वो भी एक क्लाउड का प्लेटफ़ॉर्म है। आप इनवॉइस एप्लीकेशन हो गया, आप टैली यूज़ करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है। इनफैक्ट अभी आप टैली जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन अभी आप ऑनलाइन भी टैली यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अगर मैं बताऊँ, तो वो है गूगल का स्लाइड शेयर वगैरह, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का 360, गूगल का जी स्वीट। अब आप एक कंपनी में हो, अब वो कंपनी के अंदर आप कुछ फ़ाइल वगैरह बना रहे हो, आपके जो बॉस है उन्होंने बोला कि यार ये फ़ाइल बनाओ, मेरे को शेयर करो। तो आप वो फ़ाइल बनाओगे, वो फ़ाइल एक तो सेंड करोगे या फिर वो पीडी में लेके जाके अपने बॉस को बताओगे। अब वो बॉस कुछ चेंजेस बोलेगा, वापस आप आओगे, वो पीडी के अंदर आप चेक करोगे, वापस उसको रिपेयर करोगे, वापस बॉस के पास बताने जाओगे, राइट? सो इससे बेटर है कि क्लाउड, आप जो वर्ड बना रहे हो, एक्सेल फाइल बना रहे हो, पीपीटीज़ बना रहे हो, इनफैक्ट ये जो पीपीटी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी एक गूगल क्लाउड के प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने बनाया है। क्योंकि आप इज़िली किसी को भी आप उसका एक्सेस दे सकते हो। आप जो लाइव यूज़ आप यहाँ पे बैठ के पीपीटी बना रहे हो, वहाँ पे से आपका जो बॉस है, वो आपकी पीपीटी चेक कर रहा है, सही है कि नहीं है। वो आपको वहीं पे बता रहा है कि नहीं ये गलत है, ये चेंज कर दो। दिस इज़ एक बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है क्लाउड, जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाउड के ऊपर ही रहेगा। आप अगर देख पाओगे कि आजकल जो हाई एंड लैपटॉप्स वगैरह है, उनकी मेमोरी जो है वो कम-कम होते जाती है। अगर आप 30-40 हज़ार का लैपटॉप लोगे, उसका आपको 1 टीबी तक का हार्ड ड्राइव मिलेगा, बट जो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के लैपटॉप होते हैं, इनफैक्ट जो फेमस है मैकबुक, एप्पल का मैकबुक, उसकी मेमोरी आपको पता है कितनी होती है? खाली 250 जीबी या फिर 500 जीबी। अगर अपग्रेड करनी है तो वो 1-2 जीबी तक भी, 1 तो टीबी तक भी हो सकता है। बट सारा डेटा एक जो मैंने मिसकंसेप्शन सुना है कि शायद लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि क्लाउड जो है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। क्लाउड आपको बहुत सारी सर्विसेज़ देता है, जैसे मैंने बहुत सारे आपको फीचर्स बताए, मैंने बहुत सारे आपको हम क्या-क्या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसा-कैसा हम बट वर्सेटाइली इसको यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से क्लाउड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल यूज़र्स एंड अदर स्टफ। अगर इसके प्रोवाइडर्स की अगर मैं बात करूँ कि कि भई हमने सब जान लिया ये क्लाउड क्या है, अब ये जो जो भी है बट ये हम अगर हमें यूज़ करना है, तो हम कैसे करें? अब ठीक है, ईमेल वगैरह, स्टोरेज वगैरह आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, गूगल का जीमेल यूज़ करते हो। अब अगर आपको हाई एंड अगर प्रोवाइडर्स अगर मैं बताऊँ, सो बहुत सारी कंपनीज़ है जो क्लाउड सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, जैसे आईबीएम का ब्लूमिक्स एक क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अज़्योर जो क्लाउड है, हमारे जो सागर सर है वो एक क्लाउड आर्किटेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। सो इट्स रियल बिग थिंग फॉर अस। गूगल जो है, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म वो प्रोवाइड करता है। अमेज़न शायद आपको लगता होगा सिर्फ़ एक शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन अमेज़न का एक और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, अमेज़न वेब सर्विसेज़, जिसमें वो सारे क्लाउड जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ में ओरेकल वगैरह, ये सारी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है, ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि मैं शायद आई एम सपोज टू आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ अ क्लाउड एंड हम इसको किस तरह से एक्सेस कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे, तो क्या होगा, किस तरह से गाइड होगा। आई होप कि मैं सफल रहा हूँ आपको ये बताने में। आई थिंक वर्तिका, इट्स ओवर टू यू, हम आगे डिस्कस करते हैं सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच मिस्टर गाइस। भागेश। इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतने सिंपल फॉर्मेट में समझाने के लिए एकदम पूरा सब क्लियर हो गया। तो एक्चुअली आप थोड़ा सा जल्दी-जल्दी बोलना पड़ा, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है तो पर एकदम सब क्लियर। या। So after listening to Mr. Bhagesh, can you guess some more companies or products which we use which uses cloud? Comment down in the chat.
Now I would like to welcome Mr. Sagar sir now to throw some light on what are the future aspects of cloud. What will future में क्या होगा इसके साथ, मतलब क्योंकि आईटी में सब कुछ आता जाता रहता है, तो फिर फ्यूचर क्या है इस सब का? I think the Sagar sir, your voice is lacking. So I hope you can hear me now. Yeah, so what I was saying, सबसे पहले तो देवेश जी को धन्यवाद ये दिया अपने what all cloud computing. If I come on to the future of cloud computing, देखिए it's like it's very easy to understand. हर बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, रिटेल का हो, बैंकिंग का हो, चाहे हम कहीं पर भी बात कर रहे हैं, राइट, हर बिजनेस में एवरीबॉडी इज लुकिंग की हाउ टू मेक प्रॉफिट, राइट, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर हाउ टू मेक प्रॉफिट्स. बिजनेस का दैट्स अ core concept of business की while providing the services to the community I should make some profit for myself, right. अभी उस प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है? अब अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, राइट, हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर आर योर कोर कंपोनेंट. इन एवरी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर आर बीइंग कोर कंपोनेंट. और अभी उसके साथ में इट्स नॉट ओनली योर लोकल मार्केट, यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड योर मार्केट. अभी एक होटल चेन शुरू की किसी ने, होटल चेन उसने मुंबई से शुरू की, देन मुंबई, पुणे, देन ही विल गो आउट ऑफ महाराष्ट्र, देन ही विल गो आउट ऑफ इंडिया. तो लेकिन अभी इस केस में जब आप इतना बड़ा चेन शुरू कर रहे हैं, आपको इनिशियल में नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है. आप होटल चेन शुरू कर रहे हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट की चेन शुरू कर रहे हैं, या आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आगे वो कितना एक्सपांड होने वाला है. बट उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. विद क्लाउड कंप्यूटिंग का ना, इट्स अ वेरी लाइक द वे वी टेल टू अदर्स कि आपका खुद का कुछ नहीं है. ऑल यू आर डूइंग इज किराए की जमीन पर आप धंधा चला रहे हैं. अब जब किराए की जमीन पर धंधा चला रहे हैं, और जो आपका मकान मालिक है, उसके पास भी वही लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल विद हिम. तो क्या कर सकता है? आपको चाहिए 4 घंटे के लिए, आपको दिया 4 घंटे के लिए, अभी आपने बोला भैया मुझे नहीं चाहिए, वेल एंड गुड, मैं किसी और को दे देता हूँ. तो मेरे पास में खूब सारे कंज्यूमर्स हैं. तो इस तरीके से जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, और साथ ही साथ में जो जिनको रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, बिकॉज दे आर एबल टू सेव दैट मनी. अभी इसके साथ में क्या होता है ना कि लाइक आई विल कम ऑन टू दैट वन, कि आपको जब रिसोर्सेज चाहिए, जैसे लेट्स से कि मैं डेवलपर हूँ, मैंने मेरी एक एप्लीकेशन डेवलप की, या इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ होटल इंडस्ट्री, कि मैं अपना होटल शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे होटल शुरू करने का एक्सपीरियंस नहीं है. मुझे नहीं पता है कि मुझे मेरा मैनेजमेंट कौन करेगा, मेरा अकाउंटिंग कौन करेगा, मेरा किचन कौन संभालेगा, मेरा मार्केटिंग कौन करेगा, मेरा सेल्स कौन करेगा, ऑल दिस. सो व्हाट विल आई डू? इस दैट केस मैं किसी ऐसे बंदे के पास पे जाऊंगा जिसके पास में ये सारे प्रोडक्ट्स रेडीमेड. इट्स अ वेरी सिमिलर कंसेप्ट ऑफ कमिंग इनटू द क्लाउड कंप्यूटिंग, कि मेरे पास में एक आइडिया है, एक आइडिया हु कैन चेंज द वर्ल्ड. जैसे जूम मीटिंग शुरू हुआ, राइट, जैसे जीमेल शुरू हुआ था, या जैसे अपने यूना एकेडमी चलती है, राइट, एन आइडिया दैट कैन चेंज द वर्ल्ड. लेकिन उसके आगे पीछे का क्या है मुझे कुछ नहीं पता. मेरे पास में सिर्फ आइडिया है, और भी उसको यूज कैसे करना रहा, उसके लिए क्या मुझे रिसोर्सेज चाहिएंगे, उसको मैं कैसे आम जनता तक पहुंचाऊंगा, उसके लिए आई विल गो ऑन टू द क्लाउड, बिकॉज द क्लाउड प्रोवाइडर्स दे आर एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड. उनको पता है
कि मुझे नेटवर्क सेटअप करना है तो मुझे क्या लगेगा, मुझे स्टोरेज सेटअप करना है तो मुझे क्या लगेगा, तुमको अगर तुम्हारे रिसोर्सेज, तुम्हारा यूजर बेस अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड है तो तुमको क्या लगेगा, और लोकल वर्ल्ड में है तो तुमको क्या लगेगा। दे नोज इट ऑल अबाउट। और उन्होंने अपना जो सारा नॉलेज है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना करके अपने पोर्टल्स पर उन्होंने शेयर करके रखा हुआ है फॉर द नॉर्मल पीपल टू यूज। पैसा दो, यूज करो, यूज नहीं करना है बंद कर दो, पैसा अपना अपने पास, एज सिंपल एज दैट। अभी अगर हम आते हैं देन देयर आर मेजर 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स। एक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आता है, देन AWS आता है, एंड गूगल आता है। These are the major market capturing companies in the cloud computing providers। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको जैसा भाग्येश ने बताया कि आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको कंप्यूटर के साथ में स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज के साथ में आपको नेटवर्क चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज आपको as a resources it is provided to you. You can simply go onto their portal and start using them। तो उसके लिए आपको एक भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इसके अलावा आपको सेकेंडली क्या मिलता है, आपको सेकेंडली मिलता है कि कुछ बने बनाए सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि डेटाबेस। डेटाबेस का बना बनाया सॉफ्टवेयर है, यू सिंपली गो एंड यूज इट, राइट। फायरवॉल, अगर आप जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं, जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर लेके जाते हैं, जब भी अपना डेटा लेके जाते हैं, तो आपकी लाइक सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, हम लोग न्यूज में आए के दिन पढ़ते रहते हैं, डेटा लीक हो गया, डेटा हैक हो गया, डेटा लीक हो गया, एंड देन उसकी वजह से किसी कंपनी को $1 मिलियन का नुकसान हो गया, किसी को $1 बिलियन का नुकसान हो गया। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो लाइक फायरवॉल्स प्रोटेक्ट योर ट्रांजैक्शंस, कि आपका पेमेंट का डेटा जो आ जा रहा है वो कितना सिक्योर है। तो उस टाइप के सिक्योरिटी पैरामीटर्स, ये सर्विसेज भी क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सिंपली आप यूज करो एंड डिस्ट्रॉय करो, जब तक आप यूज करो तब तक यूज करो, पे करो एंड देन डिस्ट्रॉय। उसके आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास में आता है कि बनी बनाई सर्विसेज रेडी टू यूज। वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफिस 365। उससे भी कॉमन एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसा भाग्य ने ऑलरेडी बताया था, जूम मीटिंग हुआ या जीमेल हुआ, गूगल ड्राइव हुआ, ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो बट अभी इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें आगे बढ़ना कैसे है, हाउ इट इज हेल्पफुल फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव, राइट। So I would say cloud computing is not only from the career perspective, it's a very good opportunity for whoever is looking to grow their business, be it a IT startup, be it manufacturing, retail, hotel industry, travel industry, anywhere you go in the world, cloud computing is going to be your future. Why? Because all your industries are running on one or the another kind of software. Software चलाना है, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको सिस्टम चाहिएगा, आपको कम से कम कहीं ना कहीं पे आपको एक रैम, एक मेमोरी, एक सीपीयू, ये तो आपको चाहिएंगे। दैट्स अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एवरी बिजनेस इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो, राइट। आज हम जाते हैं इंडिया में, अभी हमारा पेमेंट ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत चल रहा है, राइट। नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी ने काफी एनहांस किया कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, तो पेटीएम आया, राइट। तो अभी उसने क्या किया कि जो आपके रिटेल मार्केट हैं, जो रिटेल शॉपकीपर्स है, उनको भी उन्होंने इनेबल किया कि अब आपको भी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो जब आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, देन यू विल हैव टू कम इनटू दैट मार्केट, यू विल हैव टू यूज दोस रिसोर्सेज, राइट। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज गोइंग टू बी प्रूवन अ very realistic and very bright future, Azure है, AWS है एंड गूगल क्लाउड है। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री में, मेजरली इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट क्लाउड भी आता है, क्योंकि हम अभी तक हमने जितनी बात की क्लाउड कंप्यूटिंग है, दैट्स ऑल अबाउट कि टेक्नोलॉजीज क्या है। सो एनी प्रोवाइडर हु कैन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, उसको हम क्लाउड प्रोवाइडर बोलते हैं। अभी वो प्रोवाइडर आपको on a very big platform available to everyone, that will go as a public cloud platform। अगर उसी को अगर आप छोटे लेवल पे दे रहा है कोई कि नहीं भैया मैंने तो क्या किया, मैंने तो अपना जोधपुर में एक डेटा सेंटर बनाया एंड आई एम गिविंग ऑल दिस टेक्नोलॉजीज टू ओनली द पर्सन हु आर सिटिंग इन जोधपुर, तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा, राइट। अभी क्लाउड में जैसे मैंने बोला कि इट्स अ वास्ट फील्ड। अभी अगर मैं सिर्फ अज्योर की बात करता हूँ,
So within Azure, there are around 250 to 300 services which are being made available for the users to use. तो अभी आप सब तो जाके सीख नहीं सकते हैं, तो आप क्या then how would you progress? Azure का हुआ, AWS में जाएंगे, अगर AWS का भी सेम है, अराउंड 300 to 350 सर्विसेज हैं. देन अगर आप जाएंगे गूगल पे, तो गूगल का भी, इसमें ना बिजनेस का ट्रिक है. AWS इस मार्केट में सबसे पुराना है, तो AWS जब सबसे मार्केट में सबसे पुराना है तो उसने खूब सारी मिस्टेक्स की, राइट? तो उन मिस्टेक से सीख करके व्हेन Azure came into the market, उसने वो मिस्टेक्स को नहीं रिपीट किया. They learn from their mistakes. उसके बाद में तो इसलिए AWS में सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं एज कंपेरेटिव टू Azure. और Azure से बाद में Azure की जो मिस्टेक्स थी वहां से लर्निंग करके गूगल ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो गूगल की सर्विसेज और भी कम. अब इसमें क्या होता है कि आपको, इफ आई गो ऑन टू करियर पर्सपेक्टिव, कि आप कैसे करियर ले, लाइक हाउ कैन यू मूव योर करियर प्रोग्रेशन इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा, कि आपको ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहले तो क्लाउड का फंडामेंटल्स, दैट्स वी कॉल इट क्लाउड फंडामेंटल्स. तो फंडामेंटल्स के कोर्सेज सारे प्रोवाइडर्स के हैं. क्लाउड Azure फंडामेंटल्स के हैं, देन AWS के एसोसिएट्स के हैं, देन GCP के, गूगल क्लाउड के, राइट? तो वो आपको बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है उसके बारे में सिखाता है. इसके साथ में वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. इट्स वेरी लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज which are being made available to you for your learning कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या, and how it can be useful for businesses. उसके बाद में जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग से then you have all the fundamentals, right? अब within, so like I just said, it's an entire ocean. So उसके अब you cannot learn the entire ocean. You will learn different technologies in that one. आप क्या learn कर सकते हो? Because I'm a developer. मेरे को ना सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप करना आता है. Then you go on to become an Azure developer और AWS, जहाँ पर आप ये सीख रहे हो कि जो सर्विसेज ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको यूज कैसे करना है, उनमें डेवलपमेंट कैसे करना है, उसमें like how to make products which are useful for you out of those available services. So जैसे हमने बोला था कि Azure में PaaS सर्विसेज हैं या SaaS ऑफरिंग्स हैं जो आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाती है उनको यूज करने के लिए, तो उनको यूज कैसे करना है, that becomes a that is the very base of a developer, right? Similarly, second लेयर आती है जब आप डेवलपमेंट से थोड़ा सा आगे जाएंगे कि अभी ओके मैंने मेरी एप्लीकेशन डेवलप कर दी, अब मुझे इसको होस्टिंग करनी है या मुझे इसको नेटवर्क से कनेक्ट करना है. तो उस केस में मैं you will go with network engineers, that how to connect multiple sources with these multiple components with each other, how to set up your IP configuration, how to publicize your internet, how to publicize your application over the internet, how to make sure that your users are able to connect, right? So these things comes into your network layer. So जितने layers उसमें हैं, like in a software development में जितने भी layers हैं, उसी तरीके से हर लेयर के लिए एक अलग फील्ड है. आजकल अभी हमारा 2-3 हफ्ते पहले एक सेशन हुआ था डेटा एनालिटिक्स पे, राइट? सो डेटा एनालिटिक्स इज वेरी अगेन दैट्स अ वेरी वास्ट फील्ड. तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल विद दिस क्लाउड प्रोवाइडर्स. सो दैट बिकम्स अनदर फील्ड विद इन योर लर्निंग कर्व कि you become an Azure data scientist, where your data analytics skills along with the Google और Azure का जो भी cloud provider है उसका skills, you just gel it up और उस तरीके से आप अपना career progression करते हैं. तो वहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एनहांस करना है, मुझे किसी स्पेसिफिक फील्ड में जिसमें भी मेरा इंटरेस्ट है उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में मुझे आगे बढ़ना है. तो आप उस फील्ड के स्पेसिफिक कोर्सेज करते हैं. Then you become like जैसे Azure network engineer या Azure DevOps. DevOps is another very powerful tool, right? हम आज DevOps की भी एक छोटी सी बात करेंगे, लेकिन जैसे Azure DevOps engineer या Azure data scientist. So similarly
सिक्योरिटी, राइट? अभी जैसे मैंने इनिशियल में बोला था दैट कि बैंक्स हुए या लाइक जहां पर भी आप यूजर का डेटा हैंडल कर रहे हैं ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, देन you are liable to hold that data with you, and you are liable to hold that data securely with you. And you will not like you are not allowed to release your data knowingly or unknowingly to anyone. So that becomes the security field of your infrastructure or security field of your software कि आपका information कितनी secure है. तो जो security के जो products हैं with these cloud providers, how we are using all those things, right? तो वो बनता है एक सिक्योरिटी इंजीनियर का एक अलग फील्ड बनता है. तो ये सारे फील्ड्स आपके स्मॉल चंक्स में बनते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोस थिंग्स, तब उसके करस्पॉन्डिंग कोर्सेज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप लर्निंग करते हैं, देन यू प्रोग्रेस. अभी आप बोलते हैं कि बॉस मेरे को ना लाइक आई एम नॉट स्पेसिफिकली डेवलपर, आई एम नॉट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक लाइक आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच कवर्स एवरीथिंग, व्हिच इज अम्ब्रेला बकेट. तो वहां पर आर्किटेक्चर काइंड के रोल आते हैं कि आप यू गो इनटू द आर्किटेक्टिंग फील्ड. तो इन आर्किटेक्टिंग फील्ड आप क्या करते हैं कि जो एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यू आइडेंटिफाई कि इस प्रॉब्लम के लिए दिस शुड बी द कंपोनेंट व्हिच शुड बी यूज्ड टू सॉल्व इट, और इस चीज के लिए ये कंपोनेंट यूज में आएगा. एंड देन यू लाइक जैसे अपने अगर हम नेटिव टर्म में बात करें, जब आप हम एक घर बनवाते हैं, राइट, देन वी गो विद कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो हमको एक नक्शा बना के देता है, एक ब्लूप्रिंट बना के देता है कि आपका घर कैसा बनेगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पर और किस रूम में कौन सी बिल्डिंग पर या कौन सी वॉल पर आप ज्यादा फोर्स डाल सकते हैं, कौन सी वॉल पर आप कम फोर्स डाल सकते हैं, कहाँ से आपकी वायरिंग जाएगी, कहाँ से आपकी पाइपलाइंस जाएंगे, वो सारे उसमें लाइक वो सारी चीज आपको वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बताता है, राइट. सिमिलरली जो आपका आर्किटेक्ट होगा, जो आर्किटेक्ट का जो फील्ड है वो आपको ये बताता है कि आपके जो गिवन रिक्वायरमेंट्स है उसमें आप कौन कौन से फील्ड्स में या कौन कौन से रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं, राइट. तो इस तरीके से लाइक अच्छा, अभी if I'm talking about a college student, if I'm talking to a college student or to someone who is just progressing in his career, frankly speaking, architecture का role is not for the freshers. Freshers के लिए we always take a single step. We take a step and grow. We take a step and grow, right? हम step by step अपने destination journey पे जाते हैं. तो उसी के लिए भी आप you start with small. You start with the fundamentals. You start with Azure Fundamentals. So Azure Fundamentals के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, Udemy पे काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं. अगर आप YouTube पर भी जाएंगे तो भी वहाँ पर भी काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो you like you crave for learning. सर्टिफिकेशन होना एक that's an advantage, of course. That's an advantage to get your resume selected, to get an interview call, right? But having the certification will not ensure that you will land into that job. That's a very basic that's a very basic difference कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेशन है तो मुझे जॉब मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. सर्टिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा इंटरव्यू तक के लिए. इंटरव्यूअर की नजर में वो आपका रिज्यूमे आ जाएगा. उसके आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज चाहिए. वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए. अगर आपने सर्टिफिकेशन कर भी लिया, मार्केट में सर्टिफिकेशन बहुत इजीली मिल जाता है. आप 2 महीने की ट्रेनिंग करोगे, आप एग्जाम दोगे, सर्टिफिकेशन हो गया, ऑल डन. बट वो आपको काम में हेल्प नहीं करता है. काम में हेल्प क्या करता है? काम में हेल्प आपकी लर्निंग करती है, आपने कितना हैंड्स ऑन किया है. तो यूडेमी के जो कोर्सेज हैं या माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर या AWS GCP, इनके सबके क्लाउड के बहुत डिटेल्ड में डॉक्यूमेंटेशन बनाए हुए हैं. अज्योर की वेबसाइट पर ही उन्होंने हर सर्टिफिकेशन के लिए उसका खुद का मटेरियल दिया हुआ है, और उस मटेरियल के साथ में ये लोग आपको एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज ओनली फॉर योर लर्निंग पर्पस. तो आपको आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप उस एनवायरनमेंट पे हैंड्स ऑन करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको इश्यूज आते हैं, आप सपोर्ट वाले से बात करते हैं, देन दैट्स हाउ यू गेट योर हैंड्स डर्टी. और जब तक आप मैदान में कूदोगे नहीं, तब तक आप समुद्र पार कर नहीं सकते.
सिर्फ certification is a second level step. Certification will help you when you are at like 5 years, 6 years, 7 years experience. जब आपको अच्छा खासा experience हो गया कि हाँ अभी I know I got my all hands dirty. I'm not a white collar engineer sitting in a room and doing all these things, right? I have got my hands dirty. मुझे पता है कि क्या होता है. And now to appear the certification, I actually don't need to do any study. क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर चुका हूँ, मैं काम भी कर चुका हूँ. तो नाउ सर्टिफिकेशन कम्स इनटू पिक्चर कि जहां पर मुझे शोकेस करना है कि बॉस देखो मैंने काम किया है और उस काम का सर्टिफिकेशन ये है. तो वहां पर हमारा सर्टिफिकेशन यूजफुल आता है. दैट विल हेल्प अस. तो अगर मैं मटेरियल्स की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि अजियोर की वेबसाइट्स पर अगर आप जाएंगे docs.azure.com तो वहां पर आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा फ्रॉम योर लर्निंग पर्सपेक्टिव. सिमिलरली AWS की साइट्स पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी AWS का कंटेंट मिल जाएगा आपको लर्न करने के लिए. एंड सिमिलरली GCP गूगल का भी मिल जाएगा. So you start with fundamentals कि basically cloud computing क्या है और then you go with the fundamentals का certification कि हाँ भैया ये मैंने किया है, मुझे इतना आइडिया है. Then you add that thing into your resume and then उसके बाद में आप एक फील्ड आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके एज ए डेवलपर एज ए फंडामेंटल्स मुझे समझ में आ गया कि अच्छा इसके ये किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ये 10-15 फील्ड्स हैं. उसमें से आप एक फील्ड आइडेंटिफाई करते हो कि अब मुझे इसमें आगे कहाँ जाना है, कौन सा फील्ड मेरा इंटरेस्ट का है. तो वो एक फील्ड आइडेंटिफाई करके फिर आप उसकी ट्रेनिंग लेते हो. एज ए कॉलेज अगर मैं किसी कॉलेज पास आउट की बात करता हूँ तो उस लेवल पर इतनी एक्सपेक्टेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक. लाइक जब इंडस्ट्रीज देखती हैं तो इंडस्ट्रीज ये देखती है कि व्हाट इज द लर्निंग एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. राइट. तो जो अजर फंडामेंटल्स के कोर्सेज करते हैं या जो फंडामेंटल कोर्सेज करते हैं और उसके बाद में जब एक एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट जब एक फील्ड आइडेंटिफाई करके उसकी आप सारी ट्रेनिंग लेते हो, उस पर आप एक्सपर्टीज बनाते हो, दैट एक्सपर्टीज इज सेल्फ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई योर एम्प्लॉयर कि बॉस मुझे इतना आता है और मेरा लर्निंग का एटीट्यूड है, मेरा काम करने का एटीट्यूड. तो देन like see industry is not looking for कि आपको सब कुछ आना चाहिए. That's impossible कि किसी को सब कुछ आता हो. What industry is looking for कि आपको जितना आता है उसमें आप एक्सपर्ट हो. That's what is more important. Instead of saying कि मुझे तो AWS भी आता है, मैंने Amazon भी किया है, Google भी किया है, Microsoft भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है, but when being asked you are not able to answer, then that will not help. इसके बजाय क्या हेल्प क्या करेगा कि सर मेरे को Azure का IaaS बेस्ड या Azure का DevOps आता है. ओके मुझे सिर्फ उतना ही आता है बट उसमें मेरी एक्सपर्टीज. सो दैट विल बी यूजफुल फॉर इंडस्ट्री आल्सो कि हाँ मुझे अगर DevOps की रिक्वायरमेंट है तो मैं इस बंदे को एज इट इज वहाँ पे पोर्ट कर सकता हूँ, उसको लगा सकता हूँ. देन ही विल बी वर्किंग फॉर मी. मुझे उस पर उसको ट्रेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा. वहीं पर अगर somebody is coming with zero background और like a vast experience, he will उसको ट्रेन करने के लिए इंडस्ट्रीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. लाइक दे हैव अ वेरी बिग ट्रेनिंग्स एंड L&D डिपार्टमेंट्स जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाती हैं. बट अगर कोई बंदा इंडस्ट्री से ट्रेंड होके आ रहा है, जैसे काफी कंपनीज हैं जिनके कोर्सेज आजकल who are running their courses in parallel with the university curriculum. तो वो कोर्सेज जब आप digitally you enroll for this courses, you learn those courses. So वो courses it's eventually reducing the training budgeting of the companies क्योंकि जो resources है वो courses करके आ रहे हैं, they are already trained up, right? तो वो सीधा मार्केट में आते हैं, they start using those resources. So yeah, I think that's majorly from the career perspective of the cloud computing and how it's being used in the industry current world. If we have any kind of questions, किसी भी तरह का कोई सवाल. If you have any questions, please write in the chat box. Sir, I have a question. If someone is from a non-IT field जो experienced है या फिर किसी के पास computer science branch ही नहीं है या फिर वो BTech या BE ही नहीं कर रहा, कुछ और में है, तो फिर how can he or she transition into cloud? As I said, cloud is
It's not specifically for the IT people, right? मैंने आप क्लाउड में like we have lot many services, right? So जब हम IT engineers की बात करते हैं, then we are talking about the core layer which is being provided as a IaaS services. जैसा भाग्येश ने बताया था कि मेरे को कंप्यूटर मिलेगा, मेरे को नेटवर्क मिलेगा, एंड देन या मेरे को एकदम खाली किराए का मकान मिला है, राइट? और उस किराए का मकान को मुझे सेटअप करना है, तो वहां पर आपकी कोर बीटेक या जो आपके कोर इंजीनियरिंग स्किल्स है वो काम में आए। लेकिन उसकी जगह पर इफ यू आर गोइंग ऑन टू पैस या SaaS सर्विसेज, जहाँ पर सीधी सर्विसेज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू यूज, राइट? तो आपको उसमें क्या सीखना है? उसमें आपको सिर्फ यही सीखना है कि उन सर्विसेज को कैसे यूज करना है। जैसे अगर मैं कॉमन जैसे टैली की बात करते हैं, राइट? टैली विच इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप, इट इज सिमिलरली अवेलेबल ऑन द क्लाउड एज, राइट? तो आपको क्लाउड में टैली कैसे यूज करना है, अगर आपको वो आता है, दैट बिकम्स अ फील्ड इन इटसेल्फ, राइट? तो उस केस में आपको आईटी का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। उस केस में आपको जो पर्टिकुलर सर्विस आप यूज करने वाले हो, सर्विस से पर आप लर्निंग करते हो। It's a very non-technical field. It's a simple software. जैसे जिस किसी ने भी अगर टैली सीखा होगा तो उसको भी टेक्नोलॉजी नहीं पता है, बट उसको टैली यूज करना आता है। इन द सिमिलर फैशन आपको नीचे की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी नहीं पता है, लेकिन आपको गूगल क्लाउड की जो सर्विसेज अवेलेबल है वो सर्विसेज यूज करना आती है। So in that way, a non-technical person can also grow his career into like cloud computing. Thank you so much, sir. If you have any questions, please comment down. Until then, can you please answer कि इस process में जो अपन pursue कर रहे हैं और सीख रहे हैं, क्या pitfalls हैं या mistakes हैं जो कर लेते हैं अपन, जो अपने को avoid करनी चाहिए, क्योंकि आपने करा है तो आपको पता ही होगा, तो इस पे कुछ लाइट थ्रो करिए। देखिए वर्तिका जी, जैसे मैंने बताया था, राइट, कि in the very initial and it's the market trend as well कि certification और India में you will get 10 and 50 100 like hundreds of centers, you get the certification in 2 months, you get the certification in 1 month. Don't go for that. Don't, like, as an initial of your career, if you are looking, or be it like not specifically cloud computing या किसी भी field में हुआ, when you are initiating, don't directly go for the certification. Even if you are going for certification, and you go for the very basic one, जो सिर्फ आपको इतना प्रूव कर रहा है that you learn that knowledge, you have that knowledge. Do not go and directly कि मेरे को तो अभी expert का certificate चाहिए, but मेरे को experience तो 1 साल का ही है. Industry is not going to have that people. Industry is not going to have that people. Industry is looking for the expert in a single field. They are looking for master of something. They are not looking for master of all, jack of none, or jack of right? Jack of all, master of none wala. So they are not looking for those things. They are looking for someone who is master of any single field. So that is like हमने भी किया है इनिशियल्स में, जब हम कॉलेज पास आउट हुए थे, उस टाइम .NET चल रहा था, राइट? तो हमने .NET सीखा, हमने .NET का सर्टिफिकेशन किया, and then when we landed into industry, आज मेरे को 15 years हो गए, मैंने कभी .NET ऑफिस यूज नहीं किया, because like so industry की डिमांड versus what you are learning, that should be match up, right? अभी आज की डेट में अगर कोई किसी थर्ड पार्टी टूल को लेकर के आता है जिसका मार्केट में प्रेजेंस ही नहीं है, उसको सीख करके आप इंडस्ट्री में जाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। वर्सेस आप कोई नया टेक्नोलॉजी है बट उसका मार्केट ग्रो बहुत अच्छा है, तो उसको लर्निंग किया हुआ आपको बहुत काम आएगा। लाइक अपने शेयर मार्केट में भी यही होता है ना कि हम लाइक वी इन्वेस्ट इनटू द कंपनी जिसका फ्यूचर हमें अच्छा दिखता है। वी डोंट इन्वेस्ट इनटू कंपनी जिसका फ्यूचर हमें नहीं दिख रहा है या जिसका फ्यूचर नहीं पता है। दैट्स द सेम थिंग, हम ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ जिसका फ्यूचर दिख रहा हो। अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा देन वी विल नॉट इन्वेस्ट इनटू दैट। योर टाइम इज मनी, वी डोंट इन्वेस्ट टाइम इन ईच एंड एवरीथिंग। True, very well Sagar said. ji, Krishna here. Yeah, Krishna, go ahead. Sagar ji, just wanted to ask, like, by education I am an engineer. Currently I am running my own freelance venture
one of the company I am actually working as a cloud sales into cloud sales and marketing. I'm doing consultancy for them. Okay, so can you guide me over what all things or what all services as a thing which are going great in market, which can help me get good amount of leads? So okay, so कृष्णा जी, अगर मैंने आपकी बात को सही से समझा है, so you are in the cloud consulting, right? कि Correct. जहाँ पर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए आप क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. Precisely. तो उस केस में आपको उस केस में अगेन यू गो विद द पैस सर्विसेज. जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ना, देन यू गो विद द पैस सर्विसेज. Okay. Try to offer as much PaaS services as you can to your clients. दो रीजन है. आप जब क्लाउड कंसल्टेंसी में जाते हैं, then basically you are trying to sell the cloud. You are trying to migrate the उनके एप्लीकेशन जो भी है, जो आज की डेट में उनके लोकल सिस्टम्स पे चल रही है, उनको आप लोकल सिस्टम से क्लाउड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो उसके साथ में उनकी कॉस्ट, उनका प्रॉफिट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं. और कीपिंग ऑल दोस थिंग्स इन माइंड, आपको अपना एफर्ट भी कम रखना है. इफ यू आर इन द क्लाउड कंसल्टेंसी, राइट, तो आपको अपना खुद का एफर्ट भी कम रखना है. तो जहां तक हो सके यूज कीजिए पैस की सर्विसेज. जैसे अगर डेटाबेस बनाना है, देन यू सिंपली गो विद अज्योर का रनिंग इंस्टेंस, अज्योर का डेटाबेस इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं एक नया वीएम लेकर के उसके ऊपर एक डेटाबेस. तो दैट इज लाइक उस काइंड की सर्विसेज. तो यू गो ऑन द पैस सर्विसेज, you go on to database, you go on to logic apps. जैसे like logic apps is a very powerful tool जहाँ पर आप case flow बनाते हो. If this happens, then you do this. If this happens, then you do like case A, case B, case B, case C, right? So go for those kind of services. वो आपको बहुत हेल्प करती है from the business perspective. आपका भी पैसा बच रहा है, आपका एफर्ट बच रहा है, और जिसका पैसा लग रहा है उसका पैसा बच रहा है. So from the consultancy, उसके साथ में if you going, always keep investing into DevOps. Okay. DevOps की pipeline आप बना करके हमेशा like उसमें if you are putting 100,000 रुपए जाओगे, जितना ऑटोमेशन हो सकता है उतना ऑटोमेशन कीजिए. जितना सेल कर सकते हैं आप ऑटोमेशन को, उतना ऑटोमेशन सेल कीजिए. बी इट प्रोविजनिंग में ऑटोमेशन है, मॉनिटरिंग में ऑटोमेशन है, ऑपरेशंस में ऑटोमेशन है. जहां पर ऑटोमेशन हो सकता है, I would suggest to go for automation in each and every field. Great. So that आपने एक बार आपके क्लाउड को, आपके यूजर को माइग्रेट कर दिया, you can simply go कि बॉस I am done, सारा ऑटोमेशन सेटअप है, अब तुम जानो तुम्हारा काम है. Great. Being in an industry for TCS as an organization, what do you think? Like, what all industries are buying cloud services? Majorly, what all industries are preferring as cloud as a services right now? देखिए, majorly, if I'm talking about the current world, in last like 3 to 4 years, banking is on the boom. Okay. Now, like when the cloud market is stable and there are तो क्योंकि बैंकिंग का क्या रहता है ना कि बैंकिंग को कंसर्न रहता है उनकी डेटा सिक्योरिटी. हाउ मच सिक्योर इज माय डेटा, राइट? तो बैंकिंग इंडस्ट्री को अब now at this level they have a good amount of confidence कि हमारा डेटा सिक्योर है with all these cloud providers. So banking is coming onto that field now. इससे पहले अगर आप जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री was the one where this cloud was in the boom, right? कि मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल. वहां पर क्योंकि अगेन मैन्युफैक्चरिंग में you are not dealing with customer data, or you are dealing with your own industry data, right? So वहां पर cloud computing was in a boom. So currently banking industry is highly pursuing for these cloud services. It can be private, it can be public, but yeah, banking is now on the cloud. Great. Thank you so much, sir. No problem. There is a question from Nikhil Chidadich in the chat box. He's writing, there are many nations that have framed their data storage guidelines to store all the data related to their citizens in their own country or in a particular region. Given that one can access this data from any part of the world, how does it affect the right to privacy of people? Yeah, Nikhil, the very apt question. And so, देखिए, what we said, what we discussed so far, I'll just go into a bit detail
हमने क्या बोला था कि क्लाउड प्रोवाइडर्स या बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या है, जो आपको उनके रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, लाइक ऑन अ रेंटल बेसिस। आप एक किराए के घर में जाके रह रहे हो, आप वो यूज कर रहे हो। अभी इवन दो इट इज योर रेंटल बेसिस, दे आर दे आर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड फॉर ऑल दिस थिंग्स कि मेरा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा डेटा, अगर मैं इंडिया के कस्टमर्स का डेटा की बात कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा इंडिया का इंडिया में ही रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, अभी एक बार सोच के देखिए कि अगर अज्योर बोल रहा है दैट आई कैन हैंडल अ मिलियन कस्टमर्स with giving them a requirement of like a million petabyte of data, Azure backend में कैसे कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं सी जगह पर तो आपके कंप्यूटर चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं पर तो फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, राइट? तो जो फिजिकल रिसोर्सेज जहाँ पर आप एक लोकेशन पे बनाते हैं, उसको हम एक डेटा सेंटर बोलते हैं, कि जहाँ पर आपके फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसके ऊपर में आपकी लाइक फिजिकली हार्ड डिस्क अवेलेबल है, फिजिकल कंप्यूटर्स अवेलेबल है, जो किराए पर दिए जा रहे हैं, राइट? तो उस तरह के डेटा सेंटर्स आपके अलग-अलग जगह पर बनते हैं। अगर मैं लाइक स्पेसिफिक टू अज़्योर और अज़्योर के लगभग 52 कंट्रीज में 255 के आसपास डेटा सेंटर्स हैं। विद इन इंडिया अज़्योर के 3 डेटा सेंटर्स हैं। तो जब 3 डेटा सेंटर्स हैं और एक ही डेटा सेंटर में लाइक डेटा सेंटर्स आर दे आर यूज्ड, दे आर इन द साइज ऑफ फुटबॉल ग्राउंड के सर्वर्स हैं, लाइक दे आर लिटरली यूज्ड। तो उन डेटा सेंटर्स में आपका डेटा स्टोर रहता है, राइट? उन डेटा सेंटर्स में अभी जैसे भाग्येश ने बताया था कि आपका वो जो डेटा वहाँ पे आपने लिख दिया, आपकी एप्लीकेशन ने डेटा वहाँ पे परसिस्ट कर दिया। अब उसकी एप्लीकेशन को आपकी एप्लीकेशन के अलावा और कोई भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। एन्क्रिप्शन कीज़ लगाई जाती हैं टू एंश्योर कि डेटा एन्क्रिप्टेड रहे। इन केस अगर कोई आपकी हार्ड डिस्क चोरी भी करके ले गया, तो भी वो हार्ड डिस्क एन्क्रिप्टेड है। वो उसको खोल के पढ़ नहीं सकता है कि उसके अंदर में क्या है, डेटा क्या है उसके अंदर। सिमिलरली जब आप अज़्योर को बोलते हो, देखिए हमने क्या बोला कि डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज आर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इट नॉट मेंट कि इट इज अवेलेबल टू द पब्लिक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। नो, इट इज अप टू यू हाउ यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर एप्लीकेशन। आप डिसाइड करते हो कि मेरा डेटा इंडिया में रहना है, या मेरा डेटा यूएस में रहना है, या मेरा डेटा यूरोप में रहना है। आप डिसाइड करते हो कि मेरी सर्विसेज जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, वो मेरी सर्विसेज इंडियन कस्टमर्स के लिए है, या यूएस कस्टमर्स के लिए है, या यूके कस्टमर्स के लिए है, या ये ग्लोबल कस्टमर्स के लिए है। वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप डिसाइड करते हो कि आपने जो डेटा उस पे डाल रहे हो, उस डेटा की आपको सिंगल कॉपी बनानी है, या उसकी 5 कॉपीज़ बनानी है, या 15 कॉपीज़ बनानी है। You like that all control is given to the user. So it's all up to you to decide कि आपको अपना डेटा प्राइवेसी रखना है या नहीं रखना है। एक अगर एकदम बेसिकली बताऊँ, आपने एक कंप्यूटर बनाया, आपने एक वीएम बनाया और उसको आपने इंटरनेट पे खुला छोड़ दिया, राइट? कि एनीबॉडी गो एंड कैन एक्सेस इट। तो एनीबॉडी विल गो एंड ट्राई टू एक्सेस। क्यों? कंप्यूटर पावर दे रहा है वो आप। लाइक एक ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग का किसी ने बात किया था, अभी जैसे बिटकॉइनिंग चलती है, राइट? तो बिटकॉइन के टर्म से बिट माइनिंग चलती है, कॉइन माइनिंग चलती है। तो जो कॉइन माइनिंग करते हैं वो लोग, दे आर कीप लुकिंग फॉर सच वीएम्स जो ओपन पब्लिक पर खुले पड़े हैं। तो सीधा उस वीएम पर जाते हैं, अपना प्रोग्राम डालते हैं, उसको यूज करते हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ कंप्यूट पावर चाहिए। उनको सिर्फ पावर चाहिए वो प्रोग्राम चलाने के लिए, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारा आपके कंट्रोल में है कि आपको डेटा कहाँ पे रखना है। जब आप डेटा प्रोविजन करने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले वो आपको लोकेशन पूछता है कि आपको कौन सी लोकेशन पे डेटा रखना है। देन यू डिसाइड कि ओके, मुझे कौन सी लोकेशन पे डेटा रखना है। एंड वंस यू टोल्ड दैट प्रोवाइडर कि बॉस, मेरा डेटा अज़्योर से, मेरा डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, इट मीन्स दैट इट विल नॉट गो आउट ऑफ इंडिया। सो दैट इज द गारंटी व्हिच इज बीइंग गिवन बाय देम। क्योंकि सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स, दे आर आल्सो कमिंग अप विद देयर ओन certifications, their own security standards, right? And that's what they are selling. That's why Azure is booming into the market, क्योंकि Azure के पास से जितना सिक्योरिटी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं, उसके वहां पर AWS पीछे रह जाता है। Azure के पास में जो ट्रस्ट रिलेशनशिप्स हैं, वहां पर Azure पीछे रह जाता है, राइट? अभी ऑफिस और विंडोज, इट्स इन ऑल द सिस्टम्स। सो जब आपके पास में विंडोज है, मतलब आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट के साथ में रिलेशनशिप है, राइट? जब आपके पास में लाइक ऑफिस 365 यूज कर रहे हो, तो आपके साथ में
Azure के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप है, तो उसी रिलेशनशिप को एंगेज करके Azure आज की डेट में लाइक इट्स लाइक इवन लाइक मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही देखा था जहाँ पर Azure ने अगेन this year Azure beated AWS and GCP in their overall revenue of the year. So along with that, AWS Azure comes with says that it gives you around 90 plus recommendations, recommended security infrastructure implemented. तो वो सारी security के लिए they are responsible so that your data is not being lost. But हाँ वो configure आपको करना पड़ता है. You cannot simply go because मैंने तो data डाल दिया, अभी ये जिम्मेदारी आपकी है नहीं. उनकी जिम्मेदारी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की है, आपके डेटा के लिए आप रेस्पॉन्सिबल. Thank you I so much, hope that Sagarji. made it clear. There's a follow-up question on security only, that how is firewall or encryption implemented among cloud users? Also comment on session cache security. Okay. Yeah, we'll discuss on that one. So firewall or encryption encrypted using cloud users, right? देखिए, encryption क्या है? If we talk about encryption in a very native term, encryption is basically converting your data into some different format which is not being readable to anybody else, right? अभी उसके ऊपर में encryption करने के लिए आप encryption की keys use करते हैं, right? So that you will use one key to encrypt that data and then you will use the same key to decrypt that data. That is like, or in a very layman term, you are putting that data into some lock और एक बॉक्स में डाल दिया, उसको लॉक लगा के अभी उसको और कोई रीड नहीं कर सकता. जब जिसके पास में वो उस लॉक की की होगी वही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, राइट? तो अब वो की एनक्रिप्शन, दैट की कैन बी मैनेज विद एनीवन, राइट? या तो मैं Azure को खुद को बोल सकता हूँ या जो क्लाउड प्रोवाइडर उसको खुद को बोल सकता हूँ कि बॉस यू एनक्रिप्ट द डेटा एंड यू कीप द कीज एंड देन तो उस केस में क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेगा? उस केस में क्लाउड प्रोवाइडर कीज एंड डेटा एनक्रिप्ट करेगा, कीज रखेगा खुद के पास में and then it will keep rotating those keys on identified frequency, on identified period. कि after every couple of months, after every 6 months, after every 1 year, it will keep rotating those keys. So that अगर किसी के पास में गलती से भी वो की चली जाती है, he will, आपकी की रोटेट हो गई है, पुराने वाली की is of no use, now you got the new key, right? So that is the data at rest. अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं Azure SQL database की, तो SQL databases are basically encrypted using latest algorithm that's called as transient data encryption. So transient data encryption or TDE, that's a very new encryption algorithm which is being used by Azure. So Azure uses this thing to encrypt the data at rest. Data at rest का मतलब क्या है कि जो डेटा आपने स्टोर कर दिए, जो डेटा आपका डेटाबेस में पड़ा है या जो डेटा आपका हार्ड डिस्क में पड़ा है, दैट इज डेटा एट रेस्ट. उसको एनक्रिप्ट कर दिया आपने यूजिंग दिस एल्गोरिथम, और इस एल्गोरिथम के लिए जो की चाहिए थी वो की दैट कैन बी मैनेज्ड बाय Azure. दैट की कैन इवन मैनेज्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ. अभी जैसे लाइक मेरा डेटा सुपर सिक्योर है, आई डोंट वांट इवन Azure टू हैव दैट कीज, सो आई विल यूज दैट कीज. एंड अब व्हेन कीज आर माइन, देन अगेन आई हैव टू ऑप्शंस. either I can ask Azure itself or ask that cloud provider itself to manage those keys. तो क्या होगा that after every certain period I will be asked to rotate the keys. So that is the Azure like customer owned key but managed by Azure, right? और तीसरा क्या होता है कि जहां पर कीज भी मेरी है, उसका मैनेजमेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, रोटेशन भी मैं ही कर रहा हूँ, सिक्योरिटी भी मेरे पास ही है कीज की, तो उस केस में Azure or any cloud provider, they don't have any hold on that encryption keys, but they will make sure that your data is encrypted using those keys. So that is about the encryption. Then if I'm coming on the firewall, then firewall के लिए if you go on to any of the cloud provider side, उनका सबका अपना they have their own firewall software implemented. You can simply go and start an instance of that firewall, और उस फायरवॉल में आप अलग अलग टाइप के रूल्स लगा सकते हैं कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन बाहर जाएगा आपके सर्विसेज से, आपके सॉफ्टवेयर से किस टाइप का ट्रांजैक्शन बाहर जा सकता है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन अंदर आ सकता है. कि जैसे ट्रांजैक्शंस बेसिकली वर्क्स ऑन मल्टीपल पोर्ट्स, राइट? व्हाट इज द डेस्टिनेशन पोर्ट, व्हाट इज द सोर्स पोर्ट, व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी. तो उस फायरवॉल में आप लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज माय सोर्स आईपी, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन आईपी, व्हाट इज माय पोर्ट,
एंड उस ट्रांजेक्शन को मुझे अलाउ करना है या डिक्लाइन करना है। तो अगर आप एक बार एक फायरवॉल लगा देते हो, इसका मतलब कि आप सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर देते हो। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल्स आर मेंट टू ब्लॉक द ट्रांजेक्शंस। उसके बाद में आपने जब सब कुछ ब्लॉक कर दिया, फिर आप उसके अंदर बिट्स एंड पीसेस में आप ट्रांजेक्शंस अलाउ करते हो। सो यू अलाउ ओनली द नोन ट्रांजेक्शंस जो आपको पता है। जैसे अगर मैं अज्योर में जाता हूँ तो अज्योर फायरवॉल इज वेरी दैट्स अ पैच सर्विस, तो आप उसमें सीधा रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज माय सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट, and you simply once that rule is defined, then those kind of the transactions will be allowed to travel through firewall, otherwise बाकी के सारे ट्रांजेक्शन ड्रॉप कर दिए जाएंगे। Similar product is available in Google as well as AWS, so these are available ready to use. Simply go ahead, you start the instance and use it. So I think okay, there is another question on session cache security, right? So session is again, see, when you're talking about session data, so session data is that's the data in transit. That's the data which is being originated from the user's machine, going on to the customer's machine, going on to your servers, right? So data move हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जब डेटा मूव हो रहा है तो वहां पर आप SSL सिक्योरिटी लगाते हो। वहां पर अगेन आपको उस डेटा को एनक्रिप्ट करना है। तो आप क्या करते हो कि जहां पर आपका डेटा इनिशिएट हो रहा है, यूजर का ब्राउजर, वहां पर आप उस डेटा को एनक्रिप्ट करते हो, फिर उसको आप ट्रांसमिट करते हो ओवर द इंटरनेट या मल्टीपल चैनल्स आर अवेलेबल। जहां पर आपका डेस्टिनेशन है वहां पर जाकर आप उस डेटा को वापस डिक्रिप्ट करते हो। सो दैट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हैपेंस फॉर द डेटा विच इज इन ट्रांजिट, एंड देन देयर इज अ डेटा विच इज एट योर लोकल, विच इज रनिंग ऑन द लोकल मशीन ऑफ द यूजर। तो उसके लिए यू यूज दोस टेक्नोलॉजीज लाइक एंगुलर हुआ, नोड.js हुआ, which will make sure that your data or your cookies are itself are like encrypted over there, so that agar if somebody is opening, or you will not store any such data which which you consider to be vulnerable. So you will avoid you storing such kind of data into your cookies so that your data is secure. The next question is, can you tell in brief what is a private, public and hybrid cloud, and what if there is any role of AI in cloud? Yes, AI and machine learning. Okay, again, AI and machine learning is that's a very buzzwords in the current industry, right? पहले एक टाइम था जब it was told that you need to train the machine. When you are programming, you are training the machine. Now with the AI and machine learning, what you are doing is you are training the machines to learn by themselves. You are giving that intelligence to machines. So it is not specifically restricted to cloud or restricted to on-premises, like the local servers, right? It is applicable for everywhere. The only difference is that आप जब AI ML और AI ML लेकर क्लाउड पे जाते हो तो क्लाउड पर आपको कंप्यूट पावर बहुत फास्ट मिलता है, एंड उसके साथ में आपके जैसे भागेश ने बताया था कि स्केलिंग इन स्केलिंग आउट का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए वो चीजें आपकी क्लाउड पर इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। अगेन, एज ए पैच सर्विसेज, जो भी AI ML के लिए सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो सारी आपको मार्केट में अवेलेबल है, रेडी टू यूज। So you don't need to put any extra efforts on setting up that infrastructure to learn that technology or to use that technology because it's readily available. अब जैसे big data के लिए Hadoop है, Hadoop का cluster setup करना itself is a big task. But if you are going on to cloud, then that cluster is readily available for you. Simply go provision and use it. So that's a similar thing कि AI ML के लिए जो भी technologies चाहिए आपको, they are ready to available in the market. You simply go and use it. Then there was another question about private, public and the hybrid cloud, right? So मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ना कि जैसे प्राइवेट क्लाउड, सो प्राइवेट क्लाउड में हम क्या कर रहे हैं कि आई एम नॉट, सी क्लाउड इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजीज। जैसे भागेश ने बताया था कि मेरे पास में मेरे को कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, देन मेरे पास में ऑटोमेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, देन मेरे पास में आई शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्केल अप स्केल डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे उसके लिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे, सो दैट्स ऑटो स्केलिंग। मेरी मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, मेरी ऑपरेशंस कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं,
that everything comes under the umbrella of cloud computing, right? Now these technologies can be provided by a small vendor or a big vendor. These technologies can be can be designed for a single customer, or that can be designed for a lot of customers. So when it is designed for a single customer, अभी जैसे DXC है, DXC is enterprise for Azure, HP का सब्सिडरी है DXC. तो DXC क्या करता है? DXC आपको प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करवाता है. तो वो क्या करता है कि जैसे अगर मैं यहीं की बात करता हूँ, कनाडा की लोकल बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ के जो बैंक्स हैं उनका डेटा सेंटर जो लाइक 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स से DXC के साथ में ही है. नाउ व्हाट बैंक्स आर लुकिंग फॉर कि हमको क्लाउड चाहिए, हमको क्लाउड की बेनिफिट चाहिए, बट हमारा इतना बड़ा डेटा सेंटर है, हमने इतना बड़ा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब यहाँ से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा करके क्लाउड पे डालना, that's a long term project. कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे हमको ये सारा काम करना. तो वहां पर DXC came ahead and they said that what you are looking for is the technologies. You are not looking for Azure or AWS. You are looking for auto scalability. You are looking for maintainability, operability, and the cost benefits. Basically, you are looking for the cost benefits. So let's talk in that terms. If I, as an infrastructure solution provider, if I, as your infrastructure owner, मैं आपको वही सारी सेम सर्विसेज अवेलेबल करवाता हूँ, राइट? इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज, राइट? अगर मैं आपको ये सारे बेनिफिट्स आपके रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में दे सकूं, देन डू यू हैव एनी कंसर्न? बैंक सेज नो, आई डोंट हैव एनी कंसर्न, क्योंकि मुझे तो टेक्नोलॉजी और कॉस्ट बेनिफिट चाहिए. जो प्रोवाइडर मुझे दे, आई एम फाइन विद दैट. सो दैट बिकम्स अम्ब्रेला ऑफ योर प्राइवेट क्लाउड. क्यों? DXC is giving those services only to the existing customers, जो उसका बैंक है, right? So इस तरीके से आप that becomes the private cloud. Secondly क्या होता है? Azure, AWS, GCP जिन्होंने अपना पूरा फोरम इसीलिए बनाया है to make these services available for anybody to use. So that is for like the entire public to use. Same technologies जो वहाँ पर अवेलेबल है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, but the private is restricted to a limited set of users. Public is open for all, right? So that becomes the private and public cloud. अभी हाइब्रिड इसके बीच में आता है कि मेरा रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुझे उसको तो मूव नहीं करना है, बट जो मैं नई एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, जो मैं नया एनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ, उन नए एनाउंसमेंट्स को मैं पब्लिक क्लाउड पे डाल देता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे वहां से कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा मिलता है. तो जहां पर ऐसा सेटअप होता है कि आपके like a set of services are running with private cloud, a set of services are running with public cloud, and that's how you are managing your entire business. तो उसको हम hybrid cloud. I hope I was able to answer that question, Vartika. Yes, totally. One more question we'll take. What are the career prospects of MLOps? You can explain in brief. MLOps is that's again a pipeline, or that's again a different term of DevOps, right? Machine learning plus operations, right? So machine learning में आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी see, जैसे मैं किसको बोला था, like there was a question about the cloud consulting, right? That what do we propose to our consultant? So you propose the automations, right? You propose the DevOps pipelines. So you automate as much as possible. That's a similar thing when you are going with machine learning. You automate as much as possible. You use the tools which are available in the market. आजकल जितने भी टूल्स मेजरली इन द मार्केट है, वो सारे दे आर ऑल इंटीग्रेटेबल विद ईच अदर. जैसे अगर मैं डेवऑप्स की पाइपलाइन लेता हूँ, दे ऑल आर कमिंग विद लाइक वेब एपीआईज हैं या वेब हुक्स हैं, जिसको आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो. इफ योर एपीआई, तो जब आप अपनी एपीआई डिजाइन कर रहे हो, देन आल्सो यू डिजाइन इट इन अ वे दैट यू कैन कॉल इट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. So in that case, once your API is designed in that way, when your machine learning tools are being used in that way that can be called from anywhere, then you set up a pipeline. You are like, let's say that you are running one module of your machine learning, you take that output of your of that module, and उस output को आप next module में use कर रहे हो, then you are again taking that output and then you are running it into the next one. So that's how you are creating a pipeline of the different modules to be used.
तो उस पाइपलाइन को आप क्या है, उस पाइपलाइन को आप कभी भी रन कर सकते हो एज एंड व्हेन यू रिक्वायर, इवन व्हेन लाइक यू कैन ट्रिगर इट व्हेन, लेट्स से कि अगर वेरी बेसिक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ कि आपको एक फाइल प्रोसेसिंग करना है, राइट, एक फाइल आपके पास में आया है और फाइल की प्रोसेसिंग करनी है, तो अज्योर में जैसे फाइल शेयर है, अज्योर का ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, राइट, सो स्टोरेज अकाउंट में आपने वो फाइल डाली, तो नाउ देयर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कि जैसे ही वो फाइल वहां पर प्लेस होती है, योर प्रोग्राम विल स्टार्ट, राइट, तो वो प्रोग्राम जब स्टार्ट करेगा वो फाइल को पिक करेगा, उस फाइल को रीड करेगा, देन आपने उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ फाइल आपको अगला काम ये करना है कि अगर इसमें किसी के लिए कोई फ्रॉड का ईमेल आया है तो आप उस बंदे को इन्फॉर्म करोगे कि बस तुम्हारे अकाउंट पर कोई फ्रॉड एक्टिविटी हुई है, राइट, सो इन दैट वे यू विल सेट अप अ फ्लो। तो सिमिलरली जो भी आपके मशीन लर्निंग के जो मॉड्यूल्स बना रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, आप अलग अलग उसको जितना मॉड्यूलर बना सकते हो उतना मॉड्यूलर बनाओगे, एंड देन आप उन सबको एक पाइपलाइन में बना करके चिप इन कर दोगे, सो दैट व्हेन योर पाइपलाइन रन्स, देन by the end of your pipeline you get what you are looking for. And yeah, so I think I hope it is sufficient enough. Yes, it is sufficient. This is my last question. With this, we'll wrap up the session. If you have any more questions, you can ask them to our email address. You can also talk to the panelists on LinkedIn if you have any doubts in now or in future. The last question is, if you will have some last words, what are any general but special tips according to your experience for anyone who's just starting in cloud? Learning, like cloud or AI, ML, Azure, AWS, GCP, learning. There is lot of market, lot of content available onto the internet. You just keep looking for it. फ्री का अवेलेबल है, फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू इवन इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी, आपको फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कीप लर्निंग एंड नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट कीप डूइंग द हैंड्स ऑन। जब भी आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास में जाते हैं, दे गिव्स यू लाइक एज अ वेलकम बोनस $200, $250, $300 का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर योर हैंड्स ऑन। सो रीड एंड लर्न, and it's applicable for the entire audience group, be if you are a college fresher ho ya like a 50-year entrepreneur ho, if you are looking to grow your business, if you are planning to use the internet to its fullest for your own interest, go for learning these things. Thank you so much, Sagar sir. Thank you so much, Bhagesh ji, for giving your insightful this event, making this event very insightful. Now we are already top of the hour, so I would request Ms. Anuja Dadhij to proceed from here for the vote of thanks. Thank you, Vartika. Am I audible? Hello. Hello. Yeah, Anuja, a little bit louder. Okay. Jai Shri Krishna. Hello, Namaskar, Khamagani, Adab, Sat Sri Akal, Kem Chho. I am Anuja, currently pursuing the last year of BTech in CSE and working as a Salesforce consultant at Concrete.io Apps. Today, our webinar was on cloud computing. In simple words, we can say that cloud computing is like delivery of computing services such as storage, database, networking, etc. over the internet. As my view, it's rapidly becoming the new normal in almost every sector, primarily because it reduces the cost, improves security, and delivers scalability. AWS, Amazon Web Services, GCP, Cloud, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Salesforce are some of the gateway to endless cloud learning possibilities. As a Salesforce employee, I knew that their integration also performed a great role in market and in the business automation. Not even in commercial or educational sector, in our day-to-day life, cloud plays a role at its image. As if we are fond of clicking pictures and fond of memories, to keep them safe for the longer period of time, we use cloud storage.
as we are changing our devices day to day. Moving on, as all good things come to an end in life, so is our webinar. Now, I would like to say some words. क्लाउड के विभिन्न परिभाषाओं को स्पर्श किया आपने, क्लाउड के विभिन्न परिभाषाओं को स्पर्श किया आपने, आप रहेंगे सदा यादगार। इतनी अच्छी सभा सुनने को मिली, इतनी अच्छी सभा सुनने को मिली। अब समर्पित करती हूँ यहाँ आभार के शब्द जा। I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. At the outset, I'd like to thank our panelist members, Mr. Sagar Dadij and Mr. Bhagyesh Tripathi, our resource persons, with some few words. सुनिएगा, आपकी मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, आपकी मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, आदर और भावनाओं का मेल कर दिया। लेकर आए आप ज्ञान और प्रौद्योगिकी की बहार, अब तहे दिल से आपका आभार, आपका आभार, आपका आभार। We are really enlightened with your knowledge and presence, sir. I am also thankful to the introducer and our moderator, Ms. Vartika Dadij, for her tremendous efforts in presentation and explaining the motto behind the DITF organization. Now, I would like to thank our founder president of DITF, Mr. Devesh Dadij, for his enthusiastic support. बड़े पापा आपके लिए कुछ पंक्तियां अर्ज किया है। खुशियों भरी इस सभा में आज अपनेपन का एहसास हुआ है, खुशियों भरी इस सभा में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। A special thanks to the organizing committee for their unflinching support and coordination. A heartfelt thanks to our attendees for the active participation. आपके लिए भी कुछ अर्ज किया है। हमारे पार्टिसिपेंट्स हुए बहुत खुश, हमारे पार्टिसिपेंट्स हुए बहुत खुश, आपसे ही प्रोग्राम हुआ है बहारदार, इसलिए व्यक्त करती हूँ आप सभी का भी आभार, आप सभी का भी आभार। With these warm words, we move to the end of today's webinar. Thank you so much. Namaste. Stay tuned. Next webinar will be held on 30th May. Looking forward to see you again. Thank you. Thank you so much, Anuja, for your beautiful words. Now, I would like all of you to participate in a quiz which we have planned on this webinar, which was conducted right now. So that it's a fun-filled quiz. So just enjoy yourselves. वर्तिका कुछ आ नहीं रहा है, कुछ इशू है क्या?
टेक्निकल इशू होगा। अच्छा वर्तिका, यू लॉस्ट कनेक्शन। चलो कोई बात नहीं, इफ इट इज एनी प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड, डोंट वरी। अदिति, शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट, या तन्नू, तो देखना है क्या। No. आई थिंक वो उसका कनेक्ट नहीं हो पा रही है लगता है। भाग्येश, एनी इशू इज दिस? I think so there is a network issue on Vartika's side. So don't worry, इस webinar की गरिमा बढ़ाते हुए हम एक orally एक कुछ कर लेते हैं in fact. So एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन का सेट तैयार किया था कि अभी जो सेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़े से छोटे से मोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट्स मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स बताए थे, क्लाउड 3 मॉड्यूल्स, 3 मेन प्लेटफॉर्म्स बताए थे। सो लेट इंटरेक्ट गाइस, हमें भी अच्छा लगेगा आप थोड़ा सा इंटरेक्ट हमसे करेंगे। तो अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए। Hi Bhagesh, it's SaaS PaaS and IaaS. Yes. Software as a service. सास मेरे बाजू में थी, सास मेरे बाजू में बैठी है, सास मेरी है। यार ये क्या बात है? ऐसे कहिए कि सास पास थी। अच्छा ये ठीक है, सास पास थी। चलो अच्छा, कुछ पासिंग मार्क्स तो दे दो। SaaS PaaS और IaaS आपने बताया, इनके फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा? Software as a service, platform as a service and infrastructure as a service. That's really nice, but हर्षित भैया अब आप आगे नहीं बोलोगे। Yes. I'm just kidding. Sure, Bhagesh, sure. कुछ क्लाउड एक बहुत ही एक इशू रहता है कि भाई क्लाउड सिक्योर है या नहीं। सो उस पे भी सागर सर ने कुछ बताया था, तो आप मुझे बता सकते हो क्लाउड अगर सिक्योर है या फिर नहीं है, अगर है तो किस तरह से सिक्योर है? कोई नहीं बोल रहा है क्या? नहीं, आई थिंक सर आपका वॉइस म्यूट है। ये यहाँ पे आईडी मेरे को दिख रहा है, शैलजा कोई है, आईडी मेरे को दिख रहा है, आपका वॉइस म्यूट है सर। आप कुछ बता रहे थे। Cloud itself provides security services for data. Okay, प्रशांत सर आप के नाइस, इट्स सो नाइस ऑफ यू। कोई रियल लाइफ एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो क्लाउड, कोई भी? और ये तो यार बहुत ही सिंपल है यार, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल तो बहुत सारे हैं यार। आप ऑनलाइन पेमेंट, जीमेल, ऑनलाइन पेमेंट, रेलवे बुकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। यस, ये भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म थ्रू ही होता है। राइट। और आज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, एक सागर सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक चीज समझाई थी सिक्योरिटी रिगार्डिंग एनक्रिप्शन। व्हाट इज एनक्रिप्शन? Hello, hi Bhagesh. जी अजय। Yeah, when we send one message, मतलब हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो उसको एनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं। तो देयर इज 2 की, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो पब्लिक की जो होती है वो सेंडर के पास होती है, वो उसको एनक्रिप्ट करता है। एंड व्हेन रिसीवर वांट टू ओपन दैट मैसेज, ही शुड हैव अ प्राइवेट की, देन दिस मैसेज विल ओपन। एक बॉक्स में बंद हो जाता है, जैसा कि सागर सर ने बताया था, लॉक हो जाता है वो, उसको कोई दूसरा नहीं। यस, सो नाइस ऑफ यू। एक बहुत ही डीप आंसर आपने दिया है, टेक्निकल एंड डीप आंसर आपने दिया है अजय भैया। आपको देवेश सर की तरफ से एक गिफ्ट। डन। तो थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू देवेश सर, थैंक यू वर्तिका, थैंक यू सागर सर। बहुत एक अच्छा वेबिनार हुआ सर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो
आप बिल्कुल हमें मेल कीजिएगा. एंड वर्तिका इज हियर. हाय वर्तिका, ओवर टू यू. Hello, thank you Bhagesh ji for taking from here. It was so nice. और बहुत सब लोग एकदम एक्टिवली सुन रहे हैं और टॉपर सब, मतलब क्या आंसर पे आंसर. बहुत ही मजा आया सुन के. और थैंक यू सो मच देवेश जी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक यू ऑल. Thank you. Let's Thank meet you. again next Sunday. Righto. All the best. Right. Thank you. देवेश भाई, टीम का हाँ जी. धन्यवाद बहुत बहुत. अरे Thank you, धन्यवाद क्या everyone. बताइए. Thank you dear. Thank you. आभार. Bye bye.